Welcome back, dear students. Now we'll discuss the future of will mind and shall mind. Okay. So this is will mind or shall mind. बुरा मानेगा और बुरा लगेगा. Right. Subject will mind, shall mind plus relative pronoun VING and object. This will be the positive structure. We'll see the negative subject will not, है ना, what we call want. Short में will not को हम क्या बोलेंगे, want, है ना. And shall not plus mind plus relative pronoun plus VING plus object. Let's discuss the confirmatory one. Will, shall plus subject plus mind plus relative pronoun plus VING plus object, है ना. Confirmatory negative will, shall plus subject plus not plus mind plus relative pronoun plus VING plus object, है ना. Let's discuss the comprehensive positive. This is WH family member. Anyone which you want to take, when, what, where, जो भी, plus helping verb will, shall plus subject plus mind plus relative pronoun VING and object, है ना. And the comprehensive negative. So let's discuss the comprehensive and confirmatory once again. एक बार हम repeat कर लेते हैं इनको. Confirmatory को देख लेते हैं और comprehensive और comprehensive negative को, है ना. तो confirmatory will start with will, shall plus subject plus mind plus relative pronoun plus VING plus object, है ना. और उसके बाद negative हमारा होगा will, shall plus subject plus not plus mind plus relative pronoun VING object, है ना. और उसके बाद हम लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव, है ना. तो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर मैंने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है, आपको पता है. कॉम्प्रहेंशन मीनिंग होता है, कॉम्प्रहेंशन का मीन्स होता है समझ, है ना. तो द क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं कोई और आप उसका सोच समझ के जवाब देते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इंटरोगेटिव्स, है ना. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द WH फैमिली मेंबर्स व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट WH फैमिली मेंबर्स आर देयर आर 9 मेंबर्स, है ना. व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, whom, हाउ एंड व्हाई, है ना. And one thing which you have to keep in your mind is that whenever you are making the comprehensive questions, you must use helping verb just after the WH family member. Means अगर आप where use कर रहे हैं तो आपको helping verb use करनी है. अगर आप what use कर रहे हैं तो helping verb use करनी है. What, where, when, which, who, whom, how और why. आप जब भी use करें question बनाने के लिए you must use helping verb, है ना. And helping verb should be of that tense in which you are using your sentence. If you are studying past, you have to use did or V2 whatever. If you are studying in present, you have to use do, does. And if you are studying future, you have to use will or shall, है ना. तो हम यहाँ पर comprehensive देखेंगे will mind और shall mind यानी कि future में. तो we'll discuss this chapter, this section once again. WH family plus will, shall, ये helping verb है ना, which I told you that after WH member you must have helping verb of that tense. क्योंकि अगर आप if you are not using the proper helping verb, you are not talking about the correct tense. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप tense की बात ठीक से नहीं कर रहे हैं ना. तो ये ध्यान में रखें, इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें. तो WH family member plus will, shall plus subject, है ना, plus mind प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हमारा हुआ पॉजिटिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर. अभी हम नेगेटिव देखते हैं. WH फैमिली विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट. ये नॉट नेगेटिव है तो आपको नॉट को इंट्रोड्यूस करना प्लस माइंड प्लस रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे आपको यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना. किसका यूज करेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, ये आप RP जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना. तो हम इनका यूज रिलेटिव प्रोनाउन का करेंगे यहाँ पर. एंड आफ्टर दैट VING, आपको पता ही है वी आर स्टडिंग VING लेसन्स, तो हम इधर VING का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट, है ना. सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर. और अभी हम एक सेंटेंस जो हमने डिस्कस किया है, वी डिस्कस इन ऑल दिस, है ना. तो हम सारे ही पार्ट्स में इसको डिस्कस करते हैं. मैंने आपको बताया मुझे आपका देर से घर आना बुरा लगेगा, है ना. फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो लगेगा, गागी की आइडेंटिटी होगी. आई विल माइंड योर कमिंग होम लेट. आई वॉन्ट माइंड, विल नॉट को आप एक साथ भी बोल सकते हैं. आई वॉन्ट माइंड योर कमिंग होम लेट. विल आई माइंड योर कमिंग होम लेट.
विल आई नॉट माइंड योर कमिंग होम लेट। अब कॉम्प्रिहेंसिव में देखिए, है ना, मुझे आपका देर से आना क्यों बुरा लगेगा। क्यों आया, तो WH फैमिली का कौन सा मेंबर आएगा, वाई, और उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। तो वाई विल आई माइंड योर, देखिए स्ट्रक्चर पे, योर कमिंग होम लेट, ठीक है। वाई विल आई माइंड योर कमिंग होम लेट। और अगर हम इसी का नेगेटिव बनाए, कॉम्प्रिहेंसिव नेगेटिव, तो वाई विल आई नॉट माइंड योर कमिंग होम लेट। मुझे आपका देर से आना क्यों नहीं बुरा लगेगा, वाई विल आई नॉट माइंड योर कमिंग होम लेट, है ना। सो दिस इज द चैप्टर विच वी डन। माइंड, विल माइंड और शेल माइंड हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में पढ़ा। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइजेज अब हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर इज जस्ट, और these structures are just to guide you, है ना, but we don't use structure before anybody, है ना, we have to make the sentences। तो हम जो sentences हैं उनको वो हमारे करेक्ट हो जाएं, that's why I have to teach you grammar, है ना। ग्रामेटिकली पैटर्न आपको सिखाना पड़ता है, because whenever you are making negative, where is the place where you have to use not or whatever, है ना। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर्स पहले बताती हूँ, लेकिन उसके बाद ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें अपने सेंटेंसेस की, राइट। सो वी विल डिस्कस द सेंटेंसेस। अब मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, जस्ट टेक आउट योर पेन एंड पेंसिल, और मैं सेंटेंस डिस्कस करूंगी, और इफ देयर इज सम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग दैट विल आल्सो बी डिक्टेटेड यू, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, बट यू गो फॉर द प्रैक्टिस एट होम, है ना। एक बार आप उसकी घर में प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। तो मैं अब आपको डिक्टेट कर रही हूँ सेंटेंसेस, वो आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, ओके। राइट डाउन, है ना। हमने माइंड किया है, तो हम सबसे पहले माइंड को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम माइंड को ले लेते हैं पहले, प्रेजेंट में माइंड को डिस्कस करते हैं ना। मुझे आपका इस काम को अकेले पूरा करना बुरा लगता है। मुझे आपका इस काम को अकेले पूरा करना बुरा लगता है। नंबर 1 सेंटेंस, है ना, नोट डाउन करते जाएं और फिर आप इनकी प्रैक्टिस करें। नंबर 2, क्या आपको विपरीत परिस्थितियों में काम करना बुरा नहीं लगता है। क्या आपको विपरीत परिस्थितियों को हम क्या बोलेंगे, हॉस्टाइल कंडीशंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, हॉस्टाइल कंडीशंस, ठीक। और एक बहुत जनरल सा सेंटेंस है जो कि हम आपको जनरली बताते रहते हैं, बच्चों से आप बोलते हैं, मुझे आपका इन बातों पर समय बर्बाद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या मुझे आपका इन बातों पर समय बर्बाद करना बुरा लगता है ना। मुझे आपका इन बातों पर समय बर्बाद करना बुरा लगता है। I mind you're wasting time on these type of gossipings, है ना, या these things you can write like that। अब हम लेते हैं पास्ट की कुछ एक्सरसाइजेस, ठीक है। क्या आपको इतने कम पैसों पर ये वाहन बेचना बुरा नहीं लगा। क्या आपको इतने कम पैसों पर ये वाहन बेचना बुरा नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम, क्या आपको मेरा घर आना बुरा लगा। क्या आपको मेरा घर आना बुरा लगा। और आप इसको थोड़ा सा और ये भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या आपको मेरा देर से घर आना बुरा लगा। विल यू माइंड माई कमिंग होम लेट, है ना, कंफर्मेटरी है ना, तो विल शैल से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। आपको मेरे दोस्त का आपको मेरे दोस्त का गवाही देना बुरा लगा। आपको मेरे दोस्त का गवाही देना बुरा लगा। क्या आपको मेरा इतनी देर इंतजार करना बुरा लगा। विल यू माइंड माई वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना।
क्या आपको मेरा इतनी देर इंतजार करना बुरा लगा? अब हम फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। फ्यूचर में देखिए, मेरे दोस्त को रवि का प्रश्न पर प्रश्न पूछना बुरा लगेगा। फ्यूचर में है ना, मेरे दोस्त को रवि का प्रश्न पर प्रश्न पूछना, इसको कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, है ना। कैसे लेंगे हम? क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, ठीक है। मेरे दोस्त को रवि का प्रश्न पर प्रश्न पूछना बुरा लगेगा। मेरे दोस्त को रवि का, माय फ्रेंड विल माइंड रवि's आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, है ना। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे। मेरे दोस्त को रवि का प्रश्न पर प्रश्न पूछना बुरा लगेगा। क्या आपको ये जोखिम उठाना बुरा नहीं लगेगा? क्या आपको यह जोखिम उठाना बुरा नहीं लगेगा? जोखिम उठाने को क्या बोलेंगे? टेकिंग रिस्क, ठीक है, टेकिंग रिस्क। और क्या आपको कोरोना काल में इस व्यापार में, क्या आपको कोरोना काल में इस व्यापार में पैसा लगाना बुरा लगेगा, है ना। तो ये हमारे कुछ फ्यूचर के सेंटेंसेस हुए। और इससे पहले मैंने आपको एक और एक्सरसाइज पढ़ाई थी, स्टॉप, है ना। उसकी एक्सरसाइजेस भी हमने नहीं की थी, तो हम इसी चैप्टर के साथ उसकी एक्सरसाइज को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको स्टॉप और स्टॉप्स पढ़ाया था। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द सेंटेंस ऑफ द स्टॉप एंड स्टॉप्स, ठीक है। नंबर 1, आप मुझे कुछ भी बोलने से क्यों रोकते हैं? आपको पता है ना, पहले मैं प्रेजेंट में डिस्कस करूंगी। तो आप मुझे कुछ भी बोलने से क्यों रोकते हैं, है ना। आप मुझे कुछ भी बोलने से क्यों रोकते हैं? क्यों बोला मैंने, तो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। व्हाई विल यू स्टॉप मी, व्हाई विल यू स्टॉप मी स्पीकिंग एनीथिंग और सेइंग एनीथिंग। नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, कुछ भी बोलने से, तो एनी का यूज करते हैं। अगर आपको लगता है पॉजिटिव, तो व्हाई विल यू स्टॉप मी सेइंग और स्पीकिंग समथिंग, है ना। लेकिन अब चूंकि क्यों है, तो थोड़ा नेगेटिव और क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, तो हम एनीथिंग लगाएंगे। पॉजिटिव में हम सम का यूज करते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम एनी का यूज करते हैं ना, ठीक है। आप मुझे वहां जाने से क्यों रोकते हैं? आप मुझे वहां जाने से क्यों रोकते हैं? Why will you stop me from going there, है ना। इस तरह से आप इनको बनाइए। अब हम स्टॉप के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैंने आपको इस उद्योग को, उद्योग माने इंडस्ट्री, मैंने आपको इस उद्योग को बंद करने से कब रोका? आपको पता है ना, पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? ए की आवाज, ठीक है। मैंने आपको इस उद्योग को बंद करने से कब रोका, ठीक है। उन्होंने हमें गणपति विसर्जन में जाने से क्यों रोका? उन्होंने हमें गणपति विसर्जन में, विसर्जन क्या बोलते हैं? इमर्जन, है ना। इमर्जन मीन्स आपने देखा ना, इमर्जन रॉड होता है। इमर्जन रॉड का मतलब इमर्स हो जाती है, वो पानी के अंदर डूब जाती है ना। तभी तो हम बाल्टी में लगा देते हैं ना, तो वो पानी के अंदर डूब जाती है, तो इसको इसीलिए हम इमर्सन रॉड बोलते हैं, इमर्सन रॉड, है ना। तो जब हम गणेश जी को पानी के अंदर डुबाते हैं, तो ये विसर्जन हुआ, है ना, तो इसको इमर्सन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुमने मुझे पैसा शेयर बाजार में लगाने से क्यों नहीं रोका? और तुमने मुझे पैसा शेयर बाजार में लगाने से क्यों नहीं रोका? पैसा लगाने को क्या बोलेंगे? इन्वेस्ट द मनी, है ना, इन्वेस्ट द मनी, है ना, इस तरीके से इन्वेस्ट द मनी। उसके बाद हम फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं स्टॉप के। क्या आप मुझे आने वाला चुनाव लड़ने से रोकेंगे? क्या आप मुझे, क्या से शुरू हुआ ना, तो गी को पहले ले आना, विल यू स्टॉप मी, है ना, इस तरीके से। क्या आप मुझे आने वाला चुनाव लड़ने से रोकेंगे? विल यू स्टॉप मी, विल यू स्टॉप मी फ्रॉम फाइटिंग द अपकमिंग इलेक्शन। आने वाले को अपन क्या बोलते हैं? अपकमिंग, है ना। और एनसुइंग भी बोलते हैं, आने वाले को अपकमिंग या एनसुइंग, है ना। तो आने वाला क्या है? चुनाव है। आने वाला एग्जाम होगा तो अपकमिंग एग्जाम हो जाएगा, आने वाला चुनाव होगा तो अपकमिंग इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रश्न पूछने से, या मैं आपको प्रश्न पूछने से क्यों रोकूंगा? फ्यूचर में ना, मैं आपको प्रश्न पूछने से क्यों रोकूंगा? Why will I stop you from asking question, है ना।
मैं आपको प्रश्न पूछने से क्यों रोकूंगा, है ना। इस तरीके से आप स्टॉप और माइंड इन दोनों की एक्सरसाइजेस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। तो ये मैंने आपको कुछ रिवीजन एक्सरसाइजेस दे दी थी जो हमने की। आपने विल माइंड शेल माइंड की भी देखी, और उसके अलावा माइंड और माइंडेड की भी हमने की, साथ में स्टॉप की भी की। तो इस चैप्टर के बाद वेरी सून विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ VING। नाउ अब हमारे VING के ऑलमोस्ट वी हैव डन ऑल चैप्टर्स, सम ऑफ लेफ्ट, I'll see which one has left। वो जो रह गया वो भी मैं कंप्लीट करूंगी, एंड विल गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्पीकिंग चैप्टर्स। ठीक है, सो आई विल मीट यू वेरी सून। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।